नुकसान कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो शुक्र, आप कैसे हैं? आवाज़ क्लियर आ रही है आपको जिब्रान? जी, मुझे क्लियर आ रही है, आपको आ रही है? बस हमने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। अब प्रॉपर फॉर्मली स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, जैसे आपका शेयर हो जाएगी तो इंशाल्लाह विदिन 15 मिनट्स आपको अनाउंस करेंगे, फिर आप अपनी स्पीच स्टार्ट कर दीजिएगा। जी, ठीक है। थैंक यू। Assalamu alaikum. Welcome everyone in this event. On the behalf of Core Academy, before starting this event, Mr. Zubair is here to recite a verse of Holy Quran. Assalamu alaikum everyone. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق الله العظीम। इन मुबारक आयत का तर्जुमा। और ये कि नहीं है इंसान के लिए कुछ मगर वो जिसकी वो कोशिश करता है, और ये इसकी मेहनत अनकरीब देखी जाएगी, फिर इसका पूरा बदला दिया जाएगा। Now translation in English. And that each person will only have what they try, and that the outcomes of their attempt will be seen. Then they will be fully rewarded. Sadaqallahu al-Azim. Subhanallah. So let's start it. Let me give a short interview about us, who we are. Basically, we are a training provider, consultant, international affiliations, PVT career counselors, and more information you can get on our websites and social media. Now, I'd like to call Mr. Gibran, a special guest of us, to give some speech. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much. Thank you so much, Core Academy, Aslan, Abdulaziz, everyone else who's the part of this event, for inviting me here and giving me this opportunity to speak to everyone who's going to be viewing this later or right now. One of the most things that's enticing about this event is that it is promoting skill certifications and skills. So I would like to highlight one of the important things over here is like if everyone who's listening to me would go on Google and search for the World Economic Forum Skill Survey 2021, you will see that the World Economic Forums have come up with a statement that by the end of 2030, all of 50% of the population, 50% of the skilled population will have to be reskilled. That does not mean that the skills that they currently have are not useful or they're not being helpful. The thing is that the new technology, with the new advent of technology, with the new advent of skill sets, new jobs, new needs, and new opportunities have arisen, because of which you need new skills. So as per WEF, that means that 50% people will have to be reskilled, and reskilling means all these new technologies, acquiring skills, knowledge, and applicable knowledge for all these skill sets. So in reference with that, I believe that this initiative by Core Academy is a brilliant idea. And the first step, of course, having the championship organized with the Core Academy, moving on towards the national or the provincial level, then the national level, then obviously as someone who's representing Certiport on behalf of social and technologies as well, I believe that if this thing is kept right and we are determined enough to take this forward, we can really take this internationally. We would want our Pakistani skill individuals to go represent us in the international market. We've been doing this for far too long.
but there's an age limit. But now let's break those barriers. Let's start from Core Academy's initiative, and let's take this initiative, make this an international idea, and take it alongside to the international world. Let's show this world that we have the skill sets, we have the knowledge, we have the knowledgeable people, we have the talent that is required to lead the industry, not just on the Pakistani level, on the national level, but on the international level. Let us become the next Elon Musk. Let us become the next Jeff Bezos. Let us become the next Bill Gates. Why? If they can do it, we can do it. There's nothing stopping us. So just to remember, just to sum up my points, just to make things important is skills are very important. You will find individuals in the market who right now who have a different sort of a degree entirely, but right now they're working, excelling, earning in a completely different skill set. That means I personally know a lot of people who are basically finance degree holders and but are working as a graphic designer or as a software developer or as, right now AI, artificial intelligence, cloud computing, business intelligence, and Python and other skill sets are taking so much of hype right now that everyone knows that if you want to survive in the next 10 years, these are some of the many skill sets that you would be needing. And that means that you will be securing your future, your nation's future, and of course, then you will be given the chance to lead this industry. That is why brands like Microsoft, brands like Adobe, brands like Unity, they are constantly, laying emphasis on acquiring these skill sets. Why? Because they know this is what they want in the market. This is what they acquire in the market from an individual. And for us, competitions like these can be the difference maker. For us, it could make us understand what is needed in the market, what is being, what is the demand, and also it would bridge the gap between the industry and the academia. We learn something else in the academies, and we have not this core academy office. I mean the universities and everything. But when we come to the industry, when we're working in the companies, in the corporate atmosphere, we come to know that there are certain things that we were never taught. So these competitions, these skill acquiring can really bridge those gaps. We can help you get prepared for the industry even before you enter the industry. Something that we did not have the chance to do, something that you and I and Abdul Aziz or Salan or many individuals like us had to literally struggle, make our way up, and learn these by the hard way. But with Core Academy and other individuals and other companies and ourselves, we're trying to make the difference when it matters. We're trying to make the difference right now. Like I said, World Economic Forums by 2030, 50% of the population will be considered unskilled and will require reskilling. And this is our chance to take this moment and capture it and lead the industry. I again say lead the industry. So Certiport has been providing these certifications for far too long. Now you have Pakistan. Pakistan has all this opportunity available for you. You can get the certifications through Core Academy. All the certifications that are covered, Certiport as Core Academy is a Certiport Authorized Testing Center. All of you can reach out to Core Academy, get certified, not just in Microsoft. There's Adobe, there's Unity, there's Autodesk, there's entrepreneurship. Whichever skill set that's required in the market right now is pretty much covered by Certiport. So all you have to do is reach out to Core Academy, get yourself enrolled, get started learning with the learnings. They have brilliant trainers. They have been doing this for far too long in the market. They know what they're doing, and we are there to support them. Certiport is there to support them because we are the Certiport Authorized Center for Core. We have authorized that, so we know they have the required skill set. So once again, remember, skills and certifications are the things that will lead you into the future. Don't forget that. So with this, I will congratulate the Core Academy team for starting this event, and I wish you all the best. And I provide full support from on behalf of Certiport. I hope this is a wonderful and successful. Thank you so much. Welcome. Thank you so much, Mr. Gibran, for giving a motivational speech. Thank you so much, Gibran, for your kind words and your special time. Okay, Now thank we you. will move on Core Cloud Championship.
बेसिकली कोर क्लाउड चैंपियनशिप हमने लॉन्च इस तरह से की है कि इसके 4 अलग अलग फेजेस हैं। इन फर्स्ट फेज हम लोकल लेवल पे कर रहे हैं, देन इन सेकंड फेज हम प्रोविंशियल लेवल पे मूव करेंगे, इन थर्ड फेज हम पाकिस्तान लेवल पे मूव करेंगे। आफ्टर पाकिस्तान एज अ सर्टिफाइड एमओएस की या दिगर वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप्स होती हैं। अब उनको हमने स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया है कि सबसे पहले जो चैंपियनशिप की जाएगी वो हम लोकली कर रहे हैं, यानी कि कराची बेस हो रही है। उसके बाद हम सिंध लेवल पे यहाँ से जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो मूव करेंगे सिंध लेवल की चैंपियनशिप पे। वहां से जो टॉपर्स होंगे उन्हें हम मूव कर देंगे पाकिस्तान लेवल चैंपियनशिप पे। एंड इन द लास्ट हम कोशिश करेंगे कि जो एज फैक्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप का है उसमें से अगर कोई भी हमारे पाकिस्तान लेवल का बच्चा मिल जाता है जिसकी एज बिटवीन 13 एंड 22 है, तो हम उसे सर्टिफाइड की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसे एनरोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर जिब्रान। अब इस चैंपियनशिप को हमने जो लोकली कैटेगराइज किया वो 2 फेजेस में किया है। क्लाउड की दुनिया में रहते हुए हम एक्सेल की साथ भी इस चैंपियनशिप को लॉन्च कर रहे हैं, और सेकेंडली अजूर फंडामेंटल की मदद से भी कर रहे हैं। इन फर्स्ट फेज हम ओनली एक्सेल को लेके जा रहे हैं कि क्लाउड पे कैसे काम किया जाएगा, देन आफ्टरवर्ड्स हम इसे माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे काम करने पे जाएंगे। एक्सेल इस टाइम लीडिंग स्किल सेट है हर लिहाज से। मेरे साथ मिस्टर जुहैर मौजूद है, वो अपना आइडिया शेयर करेंगे कि इनकी फील्ड से रिलेटेड एक्सेल का कितना काम हो रहा है, फिर मैं इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आगे मूव करूंगा। थैंक यू मिस्टर असरार खालिद। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी ऑफिस लाइफ है, और खासकर फाइनेंस की अगर रिलेटेड बात करते हैं, तो फाइनेंस में बगैर एक्सेल के हम कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई अटेंडेंस शीट देनी है, मुझे किसी की केपीआई सेट करनी है, कोई मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट करनी है, मुझे डैशबोर्ड रिपोर्टिंग करनी है, डायनेमिक रिपोर्ट्स की तरफ मुझे लेके जाना है, तो एक्सेल जो है बेसिक टूल है मेरा। और जब हम एक्सेल के ऊपर अगर हम बात करते हैं, एवरी ऑफिस, एवरी एम्प्लॉय वो एक्सेल के बगैर अपने फाइनेंशियल जो है वो दे ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता विदाउट एक्सेल। और एक्सेल में हम जब एक्वायर करते हैं जॉब्स के लिए, तो उसमें सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि जी हमने क्या एडवांस एक्सेल हमें चाहिए, या हमें जो एक्सेल एक्सपर्ट चाहिए, और जब हम इंटरव्यू करने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके बेसिक्स भी कवर नहीं है। क्योंकि हमने ये देखा मार्केट के अंदर एक ये गैप मौजूद है कि जो एक्सेल की जो 2 बेसिक्स आउटलाइंस है, स्पेशलिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट, जो सर्टिफाइड जो यहाँ पे पेपर लेता है माइक्रोसॉफ्ट के, तो वो आउटलाइन से मीट नहीं हो रही। तो हमें एक अवेयरनेस हम देने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस चैंपियनशिप, कि हम जो है माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की तरफ आए, और हमारे स्टूडेंट्स को जो है, और हमारे जो प्रोफेशनल स्टाफ जो हम बिल्ड कर रहे हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हो जाए, कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ जो है वो आगे बढ़े। ये हमारा एक मोटिव है चैंपियनशिप के साथ। जुहैर की बात को कंटिन्यू करता हुआ चलता हूँ। असल में यहाँ पे जो हमने मेन मोटिव है जो लिखा हुआ भी आपको शो हो रहा होगा, आर यू द नेक्स्ट पाकिस्तान नेशनल चैंपियन। इस चैंपियनशिप को लॉन्च करने का मकसद ये है कि डॉक्टर जिब्रान अच्छी तरह जानते हैं सर्टिफाइड हर साल वर्ल्ड चैंपियनशिप लॉन्च करता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से कोई भी कम्पीट नहीं कर रहा, काफी अरसे से। लास्ट कम्पीट किया था 2014 में एक स्टूडेंट ने, उसके बाद पाकिस्तान ने कभी रिप्रेजेंट ही नहीं किया, ना ही इसमें एनरोल होने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अलावा देखा जाए तो पूरी दुनिया में 145 ऐसे कंट्रीज हैं जो इस चैंपियनशिप में एनरोल होते हैं, और हर साल उन्हीं में से कोई ना कोई टॉप 3 पोजीशंस पे आ रहे हैं। लाइक एक चैंपियन बनता है, एक विनर बनता है, और एक रनर अप की पोजीशन पे आता है। सिर्फ चैंपियनशिप विन करना मकसद नहीं है, बाकी तमाम कंट्रीज इसे डोमिनेट कर रहे हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान। इसीलिए जिब्रान और हम कोर एकेडमी एज अ कोलैबोरेशन, एज अ पार्टनर कोशिश कर रहे हैं कि इस चैंपियनशिप को जो हर साल वर्ल्ड लेवल पे सर्टिफाइड की तरफ से ऑर्गेनाइज की जा रही है, पाकिस्तान में से भी कोई ऐसा बच्चा हो जो रिप्रेजेंट कर रहा हो। इधर वो विन करे या ना करे, एटलीस्ट compete तो करे, चैंपियनशिप में एनरोल तो हो, किसी भी राउंड से एग्जिट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से कोई भी उस चैंपियनशिप की तरफ रागी भी नहीं हो रहा। अब हम जिब्रान और कोर एकेडमी दोनों आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप यहाँ पे चैंपियनशिप में एनरोल हो सकते हैं, लोकल चैंपियनशिप में, ताकि आपको आइडिया हो चैंपियनशिप का बेसिकली इन्वायरमेंट कैसा होता है। जैसे जैसे राउंड बाय राउंड हम इसे मूव करते जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते जाएंगे।
इन लास्ट जब हम लोकल से सिंध लेवल पे मूव करेंगे, सिंध के बाद पाकिस्तान लेवल पे मूव करते हैं, तो आपको इंटरनेशनली चैंपियनशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं, किस तरह के टास्क दिए जाते हैं, एनवायरनमेंट क्या होता है, टाइम को कैसे मैनेज करना होता है, टास्क को कैसे मैनिपुलेट करना होता है, टाइम की बाउंड्री क्या होती है, वो तमाम चीजों के आप यूज टू हो चुके होंगे। तो होपफुली मैक्सिमम चांसेस होंगे आपके पास कि आप इंटरनेशनल चैंपियनशिप में compete कर सकें। अब मैं ज़ुहैर से कहूंगा अपने आइडियाज इस पे शेयर करें। इसमें जैसे अरसलान खालिद ने बात करी कि हमारे पास से जो है कोई भी कम्पीट नहीं कर रहा है पाकिस्तान लेवल के ऊपर, तो हमें जब हम आपस में बैठे हमने डिस्कस किया तो हमें ये अंदाजा हुआ कि हमारे करिकुलम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड या माइक्रोसॉफ्ट के आउटलाइन को फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। हमारे एक मैट्रिक का बच्चा निकलता है, हमारे एक ओ लेवल से बच्चा निकलता है, वो कम्पीट ही नहीं कर पाता क्योंकि हमें ऐसा प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट ही नहीं मिला कि बाहर मार्केट में क्या चीज चल रही है। हम सिर्फ एक बुकिश नॉलेज के साथ तो चल रहे हैं। अब वो बुकिश नॉलेज ऐसी है कि ना वो हमें फायदा दे रही है ना मार्केट को फायदा दे रही है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम एक तो माइक्रोसॉफ्ट की आउटलाइन को प्रमोट करें, माइक्रोसॉफ्ट को खुद प्रमोट करें यहाँ पे, और साथ साथ जो है सर्टिपोर्ट को एक ऊपर की तरफ लेकर आए कि जी माइक्रो जो आप ऑफिस सर्टिफाइड है, आप एक्सेल सर्टिफाइड है, तो आपके पास सर्टिफिकेशन कहाँ की है? आपके पास सर्टिफिकेशन कोई लोकल बॉडी की है। लोकल बॉडी में भी किसकी होता ही है कि जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जहाँ पे बच्चे सीखते हैं अमूमन के समर कैंप जो लगते हैं कि जी आप स्किल्स अपनी इनहेंस करें, तो पता चले जी वो गली के कोने में जाके इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां पे जाके जी वो बेसिक एक्सेल कर लेते हैं और एडवांस एक्सेल भी कर लेते हैं। जब उनसे इंटरव्यू किया जाता है तो जो उनका एडवांस एक्सेल होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का जो बेसिक एक्सेल है जिसे स्पेशलिस्ट कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट, उसकी भी आउटलाइन जो है वो कवर अप नहीं हो रही होती है। तो हमारे यहाँ ऑथेंटिक नॉलेज की कमी है, ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन की कमी है कि आप एक पैसे भी खर्च करें, आप अपनी एनर्जी भी लगाएं, अपना टाइम भी लगाएं, आप अपनी तीनों चीजें लगा रहे हैं, लेकिन आउटकम क्या आ रहा है उसको कोई वैल्यू नहीं कर रहा। हमारे यहाँ जो है वैल्यू नहीं करा जा रहा चीजों को, सिर्फ डिग्रीज तो जमा हो रही है, वैल्यू नहीं है। तो हमारे मोटिव ये है कि हम एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ जो है प्रॉपर चैंपियनशिप लॉन्च करें। चैंपियनशिप लॉन्च करने का तो मकसद ये है कि हम अपने पास से जो जो हमारे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको ऊपर लेकर आए। दूसरा ये कि इसकी अवेयरनेस पैदा करें कि जी हम अपने स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर ही कि जो है हमारे पास जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के पास। और उसके ऊपर जब हम प्रोफेशनल अगर लाइफ की बात करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में अगर एक बंदा दाखिल होता है तो उसका स्किल सेट बहुत मजबूत होना चाहिए। तो ये एक इसका मकसद है। हमने शुरू ही एक्सेल से किया है, आगे फिर इंशाल्लाह इसको पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ भी लेके जाना है। और क्लाउड कंप्यूटिंग में जो एज्यूर इस वक्त एक कोर वैल्यू रखता है, तो फिर एज्यूर की तरफ हम लेकर जाएंगे। एग्जैक्टली मैं ज़ुहैर की बात को सेकंड करते हुए आगे मूव करता हूँ। इसमें बेसिकली जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हैं, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में एज लिमिटेशन है कि मिनिमम 13 होनी चाहिए, मैक्सिमम 22 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोकल चैंपियनशिप में रहते हुए, प्रोविंशियल लेवल और पाकिस्तान लेवल पे रहते हुए, हमने हर तरह की एज, जेंडर को नल एंड वॉइड कर दिया है। किसी भी लेवल का कोई भी पार्टिसिपेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, इधर वो 8 साल का बच्चा हो और वो 60 साल का एक एजेड पर्सन हो, या कोई प्रोफेशनल जॉब करने वाला हो, या बिजनेसमैन हो। इवेंट बेसिकली जो डिजाइन किया गया, सबसे पहले जैसे नॉर्मली आप किसी भी इवेंट में जा रहे होते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। आप सबसे पहले रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद इसका एक क्वालिफिकेशन राउंड होगा। हर राउंड की बेसिकली टर्म्स एंड कुछ कंडीशंस होंगी जो हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट राउंड में जो क्वालिफाई कर लेगा और अच्छे नंबर से या पॉइंट स्केल से क्लियर करता है, उसका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर। देन उसके बाद हमने एक चीज ऑप्शनल रख दी है, ऐसा कोई भी पार्टिसिपेंट जो चाहता है मैं डायरेक्ट राउंड में जाना चाहता हूँ वो सेमीफाइनल में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग ऑप्शन रखने का रीजन है कि जिस ऑफिस के एक्सेल के वर्जन की चैंपियनशिप की जा रही है, उस वर्जन का पेपर अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और सर्टिफिकेट पे भी रिसेंटली उसके एग्जाम ओपन हुआ है। एक्सेल 365 एप्स की बात की जा रही है। मोस्टली जितने भी हमारे अभी तक क्वेरीज आई थी लाइव इवेंट में आने से पहले पहले, 90% लोग कहते हैं ये पेपर लॉन्च कब हुआ है हमें यही मालूम नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो इस लेटेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली ना ही कोई अभी तक ट्रेनिंग मटेरियल अवेलेबल है, ना ही कोई पैटर्न अवेलेबल है। तो इस बेस पे हमने ट्रेनिंग को ये सोचा है कि इसे ऑप्शनल किया जाए, ताकि अगर कोई बच्चा इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहता है
तो हम ट्रेनिंग इसी में आपको चैंपियनशिप में देंगे जो आप पहली दफा रजिस्टर्ड हो चुके होंगे। देन उस ट्रेनिंग के बाद आप सेमीफाइनल राउंड में जा सकते हैं। अगर कोई डायरेक्ट जाना चाहे तो वो भी सेमीफाइनल राउंड में जा सकते हैं। इसी तरह सेमीफाइनल राउंड को जो क्लियर करेगा वो लास्टली फाइनल राउंड में आ जाएगा। अब इन राउंड्स की मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ। फर्स्ट राउंड में जैसा कि हमने कहा कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके बाद इसमें क्लियरली हमने एक चीज की इजाजत दी है कि आप किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिस के लिए मटेरियल प्रिपरेशन कैसी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ एक चीज को आपका ख्याल रखना होगा, वो होगा आपके पास लिमिटेड टाइम होगा एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। लिमिटेड टाइम क्यों होगा, उसका एक रीजन है। अगर आप इंटरनेशनल चैंपियनशिप की बात करें उसमें टाइम फ्रेम का बहुत ज्यादा इशू आता है। बच्चा पूरा एग्जाम जो 50 मिनट्स का होता है वो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहा होता है। ऐसे स्टूडेंट जो बिलो 10 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे होते हैं पूरा एग्जाम जो कि नॉर्मली 50 मिनट्स का होता है, उन्हीं को फाइनल राउंड में चांस दिया जा रहा होता है। और फाइनल राउंड में 10 मिनट से भी लेस का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। उस चीज को कवर अप करने के लिए आपको बेसिकली ट्रेनिंग का मटेरियल भी दिया जा रहा है, ट्रेनिंग ऑप्शनल भी रखी जा रही है, क्वालिफाइंग और सेमीफाइनल राउंड दिया जा रहा है ताकि आपको वर्ल्ड लेवल चैंपियनशिप की तमाम तक प्रैक्टिस हो जाए और आपकी किसी किस्म के क्वेश्चंस हो तो वो क्लियर हो जाए। इसी के साथ साथ एक चीज हम बहुत खुशी से अनाउंस कर सकते हैं कि कोर एकेडमी के ही 2 स्टूडेंट्स कह लें, 2 ट्रेनर्स कह लें, पूरे पाकिस्तान में एक्सेल सर्टिफाइड है 365 एप्स के। इसके अलावा अभी तक पाकिस्तान में 3rd पर्सन सर्टिफाइड नहीं हुआ। इस चैंपियनशिप की बेस पे हम ये मौका देना चाहते हैं कि 3rd पाकिस्तानी सर्टिफाइड हो जाए, जैसे कि कोर एकेडमी के पैनल की टीम में से 2 पर्सन सर्टिफाइड है। इसी तरह इसके रिजल्ट अनाउंस होंगे आपके क्वालिफिकेशन राउंड के। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो राउंड 2 में मूव हो जाएंगे। राउंड 2 में आपके पास अगेन एक टास्क का क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग तरह के पैरामीटर्स होंगे, उन पैरामीटर्स को आपने सॉल्व करना होगा। इससे आगे जर्नी मूव करने के लिए पार्टिसिपेंट को मस्ट है राउंड 2 क्लियर करना। इधर वो ट्रेनिंग लेके करे या विदाउट ट्रेनिंग लेके करे, दोनों चीजें ऑप्शनल है पार्टिसिपेंट के ऊपर। फाइनल राउंड के हवाले से बताता जाऊं, ये प्रॉपरली आपका सर्टिफाइड ऑथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर के अंदर एग्जाम होगा। डिफरेंट सेंटर्स इस पे कोर एकेडमी से अनाउंस करेगी कि किन किन लोकेशंस पे अवेलेबल हैं। जो इंटरनेशनल एग्जाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सेम पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए आपका एग्जाम होगा। लाइक किसी किस्म की आपके पास इलेक्ट्रॉनिक या स्मार्ट डिवाइसेस अलाउ नहीं होती, सेलफोन अलाउ नहीं होता। जो इंटरनेशनल एग्जाम के पैरामीटर्स होते हैं वो एज पर सर्टिफाइड रूल फॉलो किए जाएंगे। अलग अलग सिटीज में अगर सेंटर जहां जाओगे वो सेंटर की सिलेक्शन या सेंटर जो टेस्टिंग सेंटर का एरिया या लोकेशन होगी वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर देंगे बिफोर फाइनल राउंड कि किन किन जगहों पे टेस्टिंग सेंटर हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए हैं या डॉक्टर जिब्रान की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। उन्हीं टेस्टिंग सेंटर्स के अंदर ऑफिशियल रूल्स के रहते हुए ऑफिशियली प्रॉक्टर के अंडर विद रूल्स एंड रेगुलेशन विद टर्म्स एंड कंडीशंस आपका फाइनल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इससे पहले के जो 2 राउंड्स होंगे उसमें इंटरनली टेस्ट बनाए हुए होंगे कोर एकेडमी की जानिब से। उन टेस्ट को जो क्लियर करेगा अच्छे मार्क्स के साथ वही फाइनल राउंड में मूव करेगा। अब नॉर्मली क्वेश्चन ये होगा कि एक्सेल के अंदर क्या सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली इस चैंपियनशिप का मकसद ये है जो पहले 2 राउंड होंगे स्पेशली, क्योंकि पहले 2 राउंड के बाद तो आपके पास ट्रेनिंग का ऑप्शन अवेलेबल होगा। फर्स्ट राउंड के अंदर हमने बेसिकली आपके टेस्ट करना है कि आपकी एक्सेल की और लॉजिकल थिंकिंग कितनी स्ट्रांग है। सिर्फ वही बच्चा सेकंड राउंड में मूव करेगा, वही पार्टिसिपेंट मूव करेगा जिसकी एक्सेल और बेसिक लॉजिकल स्किल्स सेट बहुत अच्छा सेट हुआ है या जिसकी लॉजिकल कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर है। इधर उसका कोई भी बैकग्राउंड है उससे कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट बेसिक नॉलेज की हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब इस चैंपियनशिप में आप विन क्या कर रहे हैं, जो भी चैंपियनशिप विन करता है, जो चैंपियन बनता है बेसिकली उसे हमारी जानिब से 1 लाख रुपीस एज अ प्राइज मनी दिया जाएगा, प्लस एक सर्टिफिकेट होगा, प्लस एक शील्ड दी जाएगी। रनर अप को हम 50,000 देंगे और जो थर्ड विनर होगा वो 25,000 उसको दिया जाएगा कोर एकेडमी की जानिब से। देन 4th पोजीशन से लेके 10th पोजीशन तक जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे ईच पार्टिसिपेंट विल गेट 1,000 रुपीज।
रूल्स डिटेल में अगर किसी ने भी देखने हो तो हमारा चैंपियनशिप का पेज वेबसाइट पे ऑफिशियली आप विजिट कर सकते हैं। उस पर तमाम तर रूल्स भी मौजूद हैं, FAQs भी मौजूद हैं। फर्दर मोर अगर किसी किस्म की क्यूरी हो तो यूट्यूब के चैनल पे आप हमारे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक्सपर्ट पैनल अवेलेबल है, आप उनसे क्वेरी कर सकते हैं। ऑफिशियली ग्रुप, व्हाट्सएप, हर जगह पे हमने चीजें अवेलेबल की हुई है। सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जहां पे आप चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं कोर एकेडमी की टेक्निकल टीम पे, अगर रूल से रिलेटेड या टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आपको। अब इसमें टास्क किस तरह से होंगे, डिफरेंट टाइप के टास्क होंगे जिसके अंदर आप चीजें जो सॉल्व करेंगे। अब ये जो टास्क की तमाम तर डिटेल्स आ रही हैं, या पॉइंट सिस्टम क्या होगा, इधर अगर कोई टाई हो जाता है, कोई भी ऐसे दो पार्टिसिपेंट जिनके 1000 आउट ऑफ कोई भी मार्क्स आ जाते हैं, 700 लाई कर रहे हैं, देन व्हाट, वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप लोग इजीली विजिट करके देख सकते हैं। अब चैंपियनशिप में जो भी एंटर करना चाहे, इसकी एंट्री टिकट क्या है, एंट्री फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट क्या है, वो 20,000 होगी, जिसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन राउंड, ट्रेनिंग, सेमीफाइनल राउंड प्लस फाइनल राउंड मिल रहा है। और इन एनी केस जो भी विन करता है वो प्राइस मनी भी गेट करेगा 1 to 10 पोजीशन तक। अब किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो ये तमाम डिटेल्स आपके स्क्रीन पे सामने शेयर हो रही हैं, वेबसाइट पे, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे, जहां पे आप जो भी क्वेरी करना चाहें हमसे कर सकते हैं। फर्दरमोर अगर कोई भी हमारे साथ अभी अवेलेबल है, लाइव क्वेश्चन करना चाहे तो हम आपके साथ अवेलेबल है, पैनल आपको रियल टाइम में आंसर प्रोवाइड करेंगे। Questions? फिलहाल किसी का भी लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस इवेंट को यहीं पे समअप करते हुए वाइंड अप कर रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चंस हो तो इन तमाम लिंक्स के थ्रू हमसे अप्रोच कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, किसी भी किस्म की क्वेरी कर सकते हैं। वेबसाइट पे इंक्वायरी फॉर्म भी अवेलेबल है, जो भी डिटेल चाहें आप हमसे ले सकते हैं। इन इवेंट्स को भी हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। आज फर्स्ट इवेंट होने जा रहा था, बेसिकली अवेयरनेस देनी थी कि चैंपियनशिप में हम क्या दे रहे हैं और चैंपियनशिप के अंदर हो क्या रहे। इसी तरह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह डेट अनाउंस हो जाएगी सेकंड इवेंट की। उस सेकंड इवेंट में हम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तमाम तर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह थर्ड इवेंट एंड लास्ट 4 इवेंट में तमाम तर डिटेल आपसे चैंपियनशिप की शेयर कर दी जाएंगी। आफ्टर 4 इवेंट्स प्रॉपरली चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू। जी जिब्रान, आपका कोई क्वेश्चन? No, thank you so much, Ruslan. Sounds pretty good, and I think we all are very excited about it. And let's just hope it gets started and really we make it to the international work. And like you said, you and I and the Core Academy will work on this and take it Sure. international level, inshallah. थैंक यू सो मच जिब्रान फॉर योर प्रीवियस टाइम। इंशाल्लाह सेकंड इवेंट में हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शेयर करेंगे। Inshallah. वंस अगेन थैंक यू। Thank you, sir.